السلام علیکم. السلام علیکم کیا حضرت. حال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ سب بڑھیا صاحب, آپ سنائیے. طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے؟ جی نہیں, طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن لیتے لیتے آپ کا وہ تبصرے ہم سنتے رہتے ہیں. اچھا, جو آپ نے بریلی ملا کون سا تھا وہ, کون سا؟ واللہ عالم پہ, اسے بڑا اچھا جم کے دھویا, مزہ آ گیا صاحب رات سننے میں. آپ واللہ عالم دھویا. ہاں, وہ ادھر ادھر کونے جھانکتا ہے, وہ اسے گھسیٹ کے رکھ دیا, دھو دیا آپ نے صحیح کر کے. بتائیے, نئے نئے طریقے ایجاد کر رہے ہیں. اور اپنی غلطی نہیں مانتے تھے. آپ نے بھی سنا ہوگا بچپن سے لے کے اب تک دونوں سب دیوبندی بریلوی سب یہی کہتے ہیں انشاءاللہ. جی جی جی, آج تک آپ نے یہی سنا ہوگا نا. جی جی. اب یہ اس کا مطلب یہ نئے طریقہ ایجاد کر کے بتائیں گے لوگوں کو کہ بھائی ایسا کہو کہ دیوبندی انشاءاللہ کہتا ہے تو تم انشاءاللہ و رسول کہو, تم ماشاءاللہ و رسول کہو. شریعت کو ہی بدل دیں گے کیا؟ دوریاں پیدا ہو وہ طریقہ لائیں جس سے عوام میں دوریاں ہوں. دوریاں ہوں, یہ آپ نے صحیح سمجھا, یہ آپ نے صحیح سمجھا کہ دوریاں پیدا ہوں. ایسے طریقے ایجاد کر رہے ہیں کہ دوریاں پیدا ہوں, نفرتیں پیدا ہوں. یہ نفرتی پنٹو ہیں تو یہ بریلی والے نفرتی پنٹو ہیں. یہ تو دھیرے دھیرے ہر انسان انہیں برا لگتا ہے, ہر انسان میں خامی ہے. ایک جو احمد رضا خان بریلوی نے کہہ دیا وہ آخر اور اول ہے ان کے لیے. وہ تو ایک رامپور کے مفتی نے کہا تھا, جامعہ اسلامیہ کے مفتی نے, کہ ہمارے لیے فاضل بریلوی کی بات ہر سے آخر ہے, جبکہ قرآن حدیث کے لیے کہنا چاہیے بات, لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم فاضل بریلوی کی بات ہر سے آخر ہے. وہ جامعہ ازہر سے پڑھ کے بھی آیا, کیا یہی پڑھ کے آئے تھے جامعہ ازہر سے؟ وہ سب چیزیں دوسرے نمبر پہ ہیں, پہلے نمبر پہ یہ چیز ہے. اب بتائیے آپ, پہلے رامپور کا ماحول اتنا اچھا تھا, یعنی سمجھ لو رامپور کا ماحول اتنا بڑھیا ماحول تھا کہ ہندوستان میں ایسے شہر بہت کم تھے جیسے رامپور, لیکن وہاں کا ماحول بھی انہوں نے بگاڑ کے رکھ دیا رامپور کا بھی. بلاسپور میں سب پھپون نہیں تھی والی دیوبندیت بریلیت والی, ان لوگوں نے آ کے سب جگہ کر ڈالی, رامپور میں بھی اب کر ڈالی بہت سے گاؤں. خاص رامپور میں تو نہیں ہے ان کی, خاص رامپور میں ان کی پکڑ نہیں ہے, 10% ہے رامپور میں, تو 5-10% بس. وہ رامپور میں تو وہ بھی ان کا تعلق دیہات سے ہے, جو دیہات کے شہر میں. ہاں بس دیہاتوں میں زیادہ گھس گئے لوگ. اور اس میں بلاسپور میں بھی پہلے نہیں تھے, پہلے میں آیا بلاسپور میں بھی نہیں تھے سب ماحول. اب بلاسپور میں بھی ہو گیا تھا. وہ لقمان رضا رہا تھا وہاں پر, فیضان رضا, لقمان رضا, اس نے ماحول ایسا بنا دیا ہے نا. اللہ حفاظت فرمائے لوگوں سے بس. اور فرمائیے صاحب کیا حال چال ہے؟ بس کرم ہے اللہ کا, سب ٹھیک ہے, اللہ کرم ہے. انشاءاللہ دھیرے دھیرے دیکھنا لوگ سمجھ جائیں گے, بے فکر رہو آپ. ایک سلام کر لیتے ہیں آپ کو, اس لیے بڑے خوشی ہوتی ہے آپ کے. میں مخصوص طریقے سے ضرور سنتا ہوں آپ کے پروگرام, جو آپ دیکھو پوری دنیا کے عالموں نے فتوے کے جواب میں واللہ عالم ہی لکھا ہے. پوری دنیا کے, چاہے وہ دیوبندی ہو بریلوی, سبھی لوگوں نے واللہ عالم لکھا. اب یہ دعوت اسلامی والوں نے نئے طریقہ ایجاد کر دیا کہ واللہ اور رسول عالم کہہ کر یہ جواب لکھوا رہے ہیں. یعنی پوری دنیا کے عالموں سے ہٹ کے یہ اپنا ایک نیا وہ چلا رہے تھے. جو میں سمجھ پایا ہوں, مجھے ایسا نہیں لگتا کہ افطاری کو بہت بڑا قرآن حدیث کا علم ہے. نہیں, وہ عالم ہی نہیں ہے, وہ خود کہتا ہے میں تو ایک دن بھی مدرسے میں نہیں پڑھا. بس وہ سنایا علم ہے, تھوڑا بہت بیٹھنے اٹھنے کا. مفتی وقار الدین صاحب کے پاس بیٹھ رہے ہوں گے, تھوڑے بہت جتنا بھی ٹائم بیٹھے وہاں سے علم سیکھ لیے, تھوڑا بہت وہ معلومات سیکھ لی. علم کیا ہے, علم کیسے کہتے ہیں, علم کیا جانے گا. علم تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. لیکن آج وہ دنیا میں نمبر 1 ہے اس وقت. نہیں, ختم ہو جائے گا معاملہ. بڑی بھیڑ ہے سنا. وقل جاء الحق وزهق الباطل, جب حق آتا ہے تو باطل مذہوق ہو جاتا ہے. ان الباطل کان زہوقا, بے شک باطل کو مٹنا ہی. اس نے تو ایسی باتیں کری ہیں
ایسی ایسی گستاخیاں چھاپی ہیں اور لکھی ہیں اور کری ہیں کہ بہت بڑی، یعنی اس کے اوپر تو ایک کتاب لکھ دی جائے، کتاب۔ ایک شخص کہتا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے سامنے کہ صاحب وعدہ خلافی کے بارے میں کیا حکم ہے، تو یہ جواب دیتے ہیں کرسی پہ بیٹھے بیٹھے۔ پھر اس کے بعد وہ جواب سننے کے بعد کہتا ہے کہ حضرت میں نے خواب میں آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا تھا کہ الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ تو یہ کرسی سے ہلا تک نہیں ہے، کرسی پہ ہی بیٹھے بیٹھے جواب دے رہا ہے۔ اب آپ بتاؤ، اللہ کے رسول جسے سلام بھیج دے تو وہ تو ویسے بھی دیوانہ ہو جائے گا۔ یہ سب ان کا اپنا ایک بنایا ایک پلان ہے، جس نے پلاننگ کے تحت وہ اس کو کھڑا کر دیا، وہ ایسا کہہ رہا، اور یہ کرسی پہ بیٹھ کے جواب دے رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، کرسی پہ بیٹھے بیٹھے۔ جبکہ ترکی کے بادشاہ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ جب اس کے پاس میں ایک کوئی شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو یاد فرمایا ہے کہ آج رات تم نے درود شریف نہیں پڑھا، تو اتنا سننے کے بعد وہ تخت سے نیچے گر گیا تھا، بادشاہ تخت سے نیچے گر گیا تھا، تخت تو نہیں بیٹھا، تخت سے نیچے گر گیا تھا۔ پھر کہا کہ پھر بتاؤ کیا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، 3 بار شاید اس نے کہا، یعنی اتنی خوشی کا عالم ہوا کہ تخت سے نیچے گر گیا اور خوشی کے اندر وہ دیوانہ سا ہو گیا۔ اور یہ الیاس قاضی کرسی پہ بیٹھ کے سلام کا جواب دے رہا ہے، کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں صاحب۔ وہ ویڈیو موجود ہے، ویڈیو ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی تو بہت ساری باتیں ہیں صاحب، 1-2 باتیں نہیں ہے۔ سلام کا اس نے مذاق بنایا، آلو بیگن ٹماٹر کی سبزی بنا کر سلام کہنا، تربوز سر پہ اٹھا کر سلام کہنا، یعنی حضور کی بارگاہ میں جاؤ تو تربوز لے کر کے جاؤ، تربوز سر پہ اٹھا کر سلام پیش کرو۔ اب بتاؤ، تربوز دونوں ہاتھ سے پکڑ کے جائیں گے تو پھر ادب رہے گا کہ نہیں، بے ادبی ہوگی۔ کہہ رہا ہے کہ چائے کی کیتلی ہاتھ میں اٹھا کر سلام کہنا، یہ سلام لکھا ہے انہوں نے وسائل بخشے کہ ان کی کتاب ہے، اس میں سلام موجود۔ ایک جگہ کہتے ہیں کاش ہوتا میں سب سیدوں کا بن کے دربان پہرا بھی دیتا، رب نے بھیجا ہے انسان بنا کر تو سلام کہنا، یعنی اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور یہ کہہ رہا ہے میں تو کتا ہوتا، کہہ رہا ہے میں کتا ہوتا تو سیدوں کی خدمت کرتا۔ کیا کتا بن کے ہی سیدوں کی خدمت کرو گے؟ انسان بن کے نہیں کر سکتے؟ کیا خیال ہے صاحب؟ کیا معلوم کیا تھے کہ وہ پیسہ بانٹنا شروع کر دیا، پیسے بانٹ رہے ہیں نا، 50-50 ہزار روپے بانٹ رہے ہیں ایک آدمی کو۔ چھوٹے آدمی کو دیتے ہیں 15,000 20,000، 20 والے کو 30، اور اس سے تھوڑا اوپر والے کو 50۔ اور جو اور ہائی لیول کے وہ جو شورا والے کمیٹی، ان کی تو تنخواہ کا حساب کتاب ہی سمجھ لو کہ بس الگ ہی۔ یہ تو 50,000 وہ ہیں جو میڈیم لیول کے ہیں۔ یہ مدینے میں بیٹھا ہے تھا؟ نہیں، یہ تو کراچی میں ہی رہتا وہ تو۔ اچھا، لیکن چندہ پوری دنیا سے کرواتا ہے، پوری دنیا سے چندے کا تو اس کے پاس اتنا حساب، وہ کمل کتنا پتہ ہی نہیں، کتنا چندہ پتہ ہی نہیں، اندازہ لگانا مشکل ہے۔ مدینہ چینل چلاتا ہے، یہ سمجھ لو اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے اس کے پاس کہ میں کیا بتاؤں۔ بس جو اعظم خان نے یونیورسٹی بنائی ہے نا، وہ پوری یونیورسٹی اس کے آدمی صرف 1 دن میں خرید لیں گے، صرف 1 دن میں، 1 دن میں پورا پیسہ دے دیں گے، 1 دن میں۔ بتائیے کتنا ہی پیسہ لگاؤ یونیورسٹی میں اعظم خان کی، اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا معلوم یہ کیا کرتے ہیں، کہاں سے چندہ کرتے ہیں، کیا لگاتے ہیں، کیا قارون کا خزانہ ان کو مل گیا ہے، کیا ہو گیا ہے۔ ابھی تو نہر فرات والا خزانہ بھی نہیں کھلا ہے۔ بس یہ پیسہ بانٹ کے کام کر رہا ہے، زکات سب خیرات کھلا کے لوگوں کا دل جیت رہا ہے۔ وہ بریلی والے اس کا پیسہ کھا کے اس کی گندی گا رہے ہیں۔ اب گستاخیاں نہیں دیکھ رہے بریلی والے، بس دیوبند والوں کی گستاخیاں دکھتی ہیں بریلی والوں کو۔ اس نے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوا دیا، لبیک یا تار کے نعرے لگوا دیے، اپنا میلاد نامہ پڑھوا دیا، اور سفر 27 میں فیضان سنت میں لکھا کہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث جتنے بھی اس کے اجتماع میں گئے تھے لانڈی کے قبرستان میں جو ہوا سب کی بخشش ہو گئی۔ اس کے اجتماع میں کوئی اس کے ہی آدمی تھوڑی تھے، اس کے لیول کے سبھی جاتے ہیں ایک دوسرے کے اجتماع میں، آپ کو معلوم ہوگا ایک دوسرے کے اجتماع میں سب شریک ہو جاتے ہیں، وہ سے تفریحاً جاتے ہیں، وہ سے ویسے جاتے ہیں۔ تو اس کے اجتماع میں گئے تھے، سفر 27 میں لکھا ہے۔ کسی کا ہو، سنی کا ہو، دیوبندی کا ہو، اہل حدیث کا ہو، اس میں تقریباً لوگ، آپ کی بات صحیح ہے، جاتے ہیں لوگ، ہاں جاتے ہیں، ہاں چاہے
कॉफी अंडा खाने जाते हैं उसमें लोग? कुछ भी मैंने करने देखा जाए, लेकिन जाते हैं, तफरीहन जाए, वैसे ही जाते हैं। मुरादाबाद में हुआ तो हम भी गए और है ना? लोग हमारे साथ नहीं हो गए। अच्छा, ये देवबंद वालों का हुआ? जी जी जी, हाँ, वो तो सब जाते हैं एक दूसरे के इज्तिमा में। सब जाते हैं उसमें तो कोई। सफर 27 में लिखा है कि एक आदमी उठ के आ गया था इसके इज्तिमा से, तो जी। अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अरे नादान, जितने भी इसके इज्तिमा में थे, उस इज्तिमा में शरीक हुए, सबकी बख्शिश हो गई। अगर तू उठ के नहीं आता तो तेरी भी बख्शिश हो जाती। यानी जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हो रहा है उसकी बख्शिश नहीं हुई, और जो इलियास काजी के इज्तिमा में जा रहा है उसकी बख्शिश। ये सब झूठ का उड़वाता है। अब ये ऐसे कटवा दिया, झूठ नहीं होता तो ख्वाब क्यों कटवाता है? ऐसे ख्वाब लिखने पर न तो इसने आज तक कलमा पढ़ा है, न तौबा किया। लिखने वाला यही है, किताब इसकी है, किताब इसकी है, लिखे इसने ही है, लेकिन न तो इससे कलमा पढ़वा रहा है बरेली वाले, न तौबा करवा रहा है। हाँ, बरेली का एक तबका जरूर उसके खिलाफ है, बहुत सख्त, लेकिन सभी बरेलवी खिलाफ नहीं है इसके। रामपुर वाले बरेलवी खिलाफ नहीं है। तौकीर रजा खां खिलाफ है इसके? हजरत मौलाना तौकीर साहब, जी। हाँ, वो तो खिलाफ होंगे, वो सुल्तानुल मुजाहिदीन है हजरत मौलाना तौकीर खां साहब। और ये मारना वाले भी हजरत मौलाना सैयद सिद्दीन हैदर मियां साहब, ये बहुत जबरदस्त काबिल शख्सियत है। मारना वाले हजरत मौलाना सैयद सिद्दीन हैदर मियां साहब, तो बहुत बड़ा काम कर रहा है साहब, बहुत बड़ा काम कर रहा है सैयद सिद्दीन हैदर मियां। पूरे इलाके को, बुंदेलखंड को उनका मुरीद हो जाना चाहिए। क्या बना रहे हैं ये? हजरत मौलाना सैयद सिद्दीन हैदर मियां मारना वाले बहुत बड़ा काम कर रहे हैं साहब। वो इमाम हुसैन को, हजरत अली को अलैहिस्सलाम कहने वाले हैं, हजरत अली को अलैहिस्सलाम कहते हैं, और बरेली वाले अलैहिस्सलाम नहीं कहते, इमाम हुसैन को मना करते हैं। जी। समझ में आ गई बात? जी जी जी। बरेली वाले इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहने को मना करते हैं। और वो सैयद सिद्दीन हैदर मियां, वो इस मिजाज के वाले, मैंने आज ही सुना उनकी क्लिप, तो हजरत अली को अलैहिस्सलाम कहा, हजरत अली अलैहिस्सलाम। तो बरेली वालों ने उनको सुन्नियत से इनकार कर दिया, वो सुन्नियत से खारिज कर दिया उनको, बरेली वालों ने। हाँ, फिर वो मतलब जो इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहता है या इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, तो उसको ये फिर सुन्नियत से खारिज करा दे देंगे। वो है तो इनके पीर के नस्ल से है, वो इनके पीर के है महाराणा वालों में। हाँ, मालरा में इनके जद्दे अमजद के, वो उनके सिलसिले से ही आते हैं। वो जहाँ से फाजिल बरेलवी मुरीद हुए थे ना, उन्हीं के खानदान से है वो, उन्हीं के खानदान से। अब ये तो और जगह के जो है कालपी वाले हैं, ये तो सिर्फ लगे हुए हैं बस, क्या हमें बरेली के सारे हम भी चले, नहीं तो हमें हमारा मार्केट डाउन हो जाएगा, हमारी बैंक नहीं भर पाएगी अगर बरेली से हम अलग हो गए तो। और कहने को यह है कि हमारा हाथ कचोजा वाले भी चूमेंगे, हमारा हाथ फलानी जगह के खानका वाले भी चूमेंगे। जब तुम इतनी बड़ी खानका गए हो तो फिर बरेली से क्यों डर रहे हो? हैं? दीन इस्लाम की तबलीग करो ना, अल्लाह के रसूल के दीन की तबलीग करो। अगर ख्वाजा कईना अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह के रसूल के दीन की तबलीग की, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने दीन इस्लाम की तबलीग की, जितने भी वली हैं सब ने दीन इस्लाम की तबलीग की। आजकल तो लोग फिरकों की तबलीग करने में लग गए कि हमारे फिरका बढ़ जाए, हमारा फिरका बढ़ जाए बस। जी जी, बिल्कुल सही है। मैं उन पर भारी हो जाऊं, मुद्दा है मैं उन पर भारी हो जाऊं। हाँ, ये आपने सही बात, जो आपने एक खास बात कही, मेरी तादाद उनसे ज्यादा हो जाए, मैं भारी हो जाऊँ। असल तबलीग तो देखो औलिया किराम ने की है बस। हज़रत हाफिज शाह जमाल रामपुरी रहमतुल्लाह ने फरमाई, जितने भी वली हैं आपको आप आपकी आवाज है। मेरी अभी बात हो रही थी चाड़े वालों से, मैंने कहा तुम्हारे पीरो मुर्शद का भी जवाब नहीं है। बात ये ईमान, साहिब ईमान लोगों में से देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले कुरान की तफसीर पढ़ो, वो भी 150 साल पहले वालों की। देवबंदी बरेलवी की लिखी मत पढ़ो, नहीं तो कहेगा देवबंदी की हो गया, बरेलवी की हो गया, अहले हदीस की। इन सब झंझटों से निजात पाना है तो 150 साल पहले वालों की पढ़ लो किताबें, उनकी तफसीर लिखी पढ़ो, उनकी शरह पढ़ लो, उनकी जो हदीस की शरह लिखी है उन्होंने वो पढ़ो। क्या ख्याल है साहब? 150 साल पहले चक्कर ही नहीं थे, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस कुछ थी? इसमें झगड़े इन्होंने सब अपने आप को, पब्लिक को उलझाया है इन्होंने। अब रामपुर में जो आपके रामपुर के मौलवी इमाम है ना बरेली तबके के, वो पूरे रामपुर में एक जलसा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम का नहीं कर सकते। पूरे रामपुर में अलग अलग जगह पर डरेंगे कि कहीं हमें शिया न बना दे बरेली वाले। डर के मारे मैं आपका देख लेना, मेरा एक कॉल
उनसे कह के देख लो बरेली आलिमों से कि साहब हम दे देंगे 10,000 रुपये, आप जश्न इमाम आबिदीन कराओ, लेकिन तकरीर उनकी शान में होनी चाहिए, इधर उधर नहीं भागना, तकरीर पूरी हिस्ट्री बयान करना उनकी। तो नहीं, मना कर दे साहब हम नहीं करवा पाएंगे। कहना साहब मैं दूंगा 10,000 दूंगा, 20 दे दूंगा, जितना होगा मैं दे दूंगा और दिला भी दूंगा, आप करा तो सही जश्न इमाम इसमें कौन सी ऐसी बात है साहब। हम आपसे ऐसा तो कह नहीं रहे, कोई गलत काम का तो कह नहीं रहे कि साहब थानवी साहब के नाम को कराओ, नाज़ी साहब को। हम तो जश्न इमाम आबिदीन का कह रहे हैं, आप भी मानते हो नहीं? हम मानते तो है, लेकिन जलसा नहीं कराएंगे। क्यों नहीं करा रहे? अरे वो ये है वो कुछ भी बहाना बना लेंगे, मतलब कुछ भी कह देंगे, जलसा नहीं कराएंगे, कुछ भी कह देंगे, क्योंकि समझ रहे हैं ना कि इमाम आबिदीन की अगर फजीलत बयान हो गई रामपुर में, तो फिर रामपुर के लोग बेदार हो जाएंगे कि यार अब तक क्यों नहीं बताई थी इन मौलवियों ने। हो सकता है रामपुर वालों को फिर जोश आ जाए कि साहब अब तक तुम छुपाए पड़े थे, इमाम आबिदीन का तो ये आलम था और तुम लोग आज तक बताते नहीं, तुम लोगों ने हमें सिर्फ बरेली वालों का ही आलम बताया, उनका ही इल्म बताया है। अरे मुझे लगता है बरेलवियत कुछ कम हो रही है लोगों के दिमाग में, कुछ गुस्सा गम का इजहार है लोगों का, या बढ़ रही है ये? नहीं, खत्म हो रही है। बम्बई में तो 40% बरेलवियत खत्म हो गई कम से कम। आज से 50 साल पहले बम्बई में 98% बरेलवियत थी, बरेलवियत बम्बई में। अब बरेलवियत वहाँ पर ये आलम है, बरेलवियत दम तोड़ रही है बम्बई में। 40% यानी हो गई कम बेच देवबंद वाले, यानी आधे आधे होने वाले हैं, कुछ दिन बाद आधे आधे हो जाएंगे बम्बई में। चूना भट्टी पे देख लो, और ये कुरला में देख लो, जोगेश्वरी में देख लो, मैं खुद गया हूँ वहाँ पर, जोगेश्वरी में भी गया हूँ, और ये क्या कहते हैं मुंबरा में, सब जगह अब समझ लो आधे आध का मामला होने वाला है बस। सूफीज्म है मुंबई में? है, सूफीज्म को मानने वाले लोग हैं? हाँ सब है, सूफीज्म वाले भी हैं, सब है, अहले बैत के मानने वाले भी हैं, बकसरत हैं। और हैदराबाद में भी खत्म बरेलियत, यानी 10% समझ लो हैदराबाद में बस। और ये क्या कहते हैं नासिक में भी बरेलियत है, नासिक है, उदयपुर है यार, उसमें बड़ी उदयपुर में भी कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगी। कह देंगे ये तुमने आज तक इमाम आबिदीन का मर्तबा नहीं बताया, ना इमाम बाकर का, ना इमाम जाफर का, रहने हम नहीं मानते आपके, अब हम नहीं मानेंगे बरेली वालों को। कह देंगे हो सकता है उदयपुर वाले भी कि तुमने आज तक बरेली वालों के अलावा हमें कुछ बताया नहीं है, तुम तो जश्न इमाम आबिदीन अब हम रखेंगे। वो कह देंगे हो सकता है हम जश्न इमाम आबिदीन रखेंगे, उनकी शान बयान करो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है। उदयपुर वाले भी अगर कह देंगे ना अगर हिम्मत है तो उनकी तारीफ बयान करो, तो नहीं करेंगे बरेली वाले। हो सकता है जाएंगे नहीं, होता जलसे में नहीं जाएंगे, उदयपुर की तारीख ही नहीं लेंगे। अरे उन्हें छोड़िए, ख्वाजा साहब की नहीं करेंगे? हाँ नहीं, उनकी तो कर देंगे, उनकी तो कर देते हैं, थोड़ी बहुत बयान, थोड़ी बहुत कर देते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत बयान कर देते हैं, समझ में। जिस दिन उदयपुर वालों ने रख दिया ना जश्न इमाम बाका या जश्न इमाम मूसा काजिम, तो उस दिन उदयपुर वालों की आंखें खुल जाएंगी कि यार अतहर हुसैन काजी सही कहते थे कि ये इमाम बाकर, इमाम ज़ैनुलआबिदीन, इमाम मूसा काजिम की शान बरेली बयान नहीं कर सकता। फिर ये बुलाएंगे भी ना इंडिया से जमदाशाही वाले को, घोसी वाले मुफ्ती को कि साहब आइए, कि वो किसका नाम का जलसा कि इमाम ज़ैनुलआबिदीन के नाम का। अरे वो मेरी तारीख खाली नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा, कुछ भी बहाना बना देंगे, मेरी तारीख खाली नहीं है, मैं फला जगह जा रहा हूँ, है। तो तब उदयपुर वालों की आंखें खुलेंगी, यार अतहर हुसैन काजी जो कहता था बात सही है कि अगर जश्न इमाम ज़ैनुलआबिदीन करा लिया तो ये लोग आएंगे ही नहीं, और शियाओं का लकब दे देंगे कि जिसने करा रहा वो शिया हुआ है। अब बताओ शिया मानेंगे क्या इनको, इमाम ज़ैनुलआबिदीन? हम भी तो मानते हैं इमाम ज़ैनुलआबिदीन को, सबके इमाम है, तो तमाम सुन्नियों के इमाम है। मेरी बात जिन लोगों से हो रही है, हाँ, जिसके जरिए, फेसबुक के जरिए, हाँ, यूट्यूब के जरिए, वो ये कहते हैं कि सैयद अतहर हुसैन साहब जो है वो बढ़िया शख्स है और उनकी सोच सही है। आज मेरी सुन्नी होना ही सबसे बड़ी पहचान है। हाँ, बस हक परस्ती वही है। सबसे पहले मैं तो मेरा यही कहना है कि जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है आखिरी में, दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ रहा हूँ। आपने फरमाया दो चीजें तुम्हारे दरमियान में छोड़ा हूँ, एक कुरान, एक मेरी सुन्नत। एक मौके फरमाया कुरान मेरी इज्जत यानी अहले बैत। फरमाया इन दोनों को अगर मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह ना होगे। मजबूत थामने का मतलब है कि कुरान को समझो, पढ़ने से ही मतलब नहीं, समझो कुरान को समझो और अमल किया जाए। मजबूत थामने का ये मतलब है। आज कुरान की तफसीर बयान नहीं हो रही, पूरे रामपुर में देख लो आप, तो देवबंद वाले तो बयान करते हैं तफसीर, ये बरेलवी करते ही नहीं, बयान ही नहीं करते।
मैं कह रहा हूँ बरेलवी पूरे हिंदुस्तान में 100 जगह नहीं मिलेगा आपको, तफसीर बयान कर दो 100 जगह। और देवबंद वाले 89 मस्जिदों में एक ही शहर में बयान कर रहे हैं, भोपाल में एक ही शहर में, फिर दिल्ली में अलग, कलकत्ता में अलग, मद्रास में अलग, इनके यहाँ तो हजारों हैं बयान करने वाले। इनका पता नहीं कौन सा बरेली वाला था जिसने ये कह दिया कि आला हजरत को सलाम करने के लिए रोजी जगह जने कौन कौन अहले बैत में से खड़े होंगे। अरे वो था हम्माद रजा ने कहा था, हम्माद रजा ने, मुरादाबादी ने कहा था कि तमाम सैयद कयामत में आला हजरत को ढूंढेंगे। उस हम्माद रजा ने यही कहा था कि एक फरिश्ता लंगड़ा के चल रहा था, फरिश्ते को लंगड़ा बता दिए थे उसने। और वो मालेगांव वाला अमीनुल काजी ने कहा था कि चांद जो है कि पीराने पीर से पूछने आता था मैं 29 को निकलूं कि 30 को निकलूं। अब बताओ, कुरान के खिलाफ बयान दे रहा, वो बाकरगंज में उसे बुला रहा, वो फाजिल बरेली के खानदान का उसे बुला रहा। मतलब काय का ईमान है तुम्हारा, फिर काय को दावा कर रहे हो यार अपने आप को, जब तुम ऐसे शख्स को बुला रहे हो कुरान के खिलाफ बयान दे रहा है, हदीस के खिलाफ बयान दे रहा है, और इतने बयान देने के बावजूद, बार बार गलतियां करने के बावजूद फिर वो तौबा का नाटक कर लेता, थोड़ी बहुत तौबा कर ली फिर वो आ गई। यानी कि न कलमा पढ़ता, न निकाह करता, न बेद करता। अरे भाई कुफ्र बकाया तो कलमा पढ़ना पड़ेगा, तौबा करना पड़ेगी, निकाह करना पड़ेगा, जब जाकर वो माफी के लायक होगा। वो तो आए दिन तौबा नाटक कर लेता, फिर जाता वापस कुफ्र बकबका। बात सही है। अमीनुल काजी ने कितने कुफ्र बके, एक दो थोड़ी बके था, वो एक दो नहीं बके, बहुत बके कुफ्र, बहुत बके। अब कुरान में अशम्स वल कमर बिहुस्बान, सूरज और चांद हिसाब से चल रहे हैं, सूर्य रहमान में है, और वो कह रहा है कि चांद आके पीराने पीर से पूछता था। जो अहमद रजा खान की तारीफ कर दे बस वो माफ हो जाते हैं, जैसे अस्तगफार पढ़ने से गुनाह माफ हो जाते हैं, ऐसी फाजिल बरेलवी का नाम लेने से सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। ऐसा माहौल हो गया है। अभी वो देखो, एक ने ऐलान कर दिया, जामनगर बेड़ी से आए थे, एक बापू साहब आए थे, काजी हैं गुजरात के, उन्होंने ये कहा था कि हम आलात की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे, घर में नहीं रहेंगे, घर में नहीं बैठेंगे। अभी ये उर्स में कहा 106 के उर्स में काजी गुजरात के काजी हैं, जबकि कहना ये चाहिए था कि रामगिरी ने जो गुस्ताखी की है हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, घर में नहीं बैठेंगे। इतने बड़े मजमे में ये कहने की जरूरत थी, बजाय ये कहने के ये कहने लगे हम आला हजरत की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे, घर में नहीं बैठेंगे। और अपने आप को आप सैयद भी कहते हो, हैं? सैयद भी कहला रहा हो, और बताइए आप ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान में खुली वो गुस्ताखी की उसने रामगिरी ने, तुमने उसके बारे में एक दो लफ्ज भी नहीं बोले, और ये कहा कि जो आला की शान में गुस्ताखी करेगा तो हम घर में नहीं बैठेंगे। दुकानें बंद ना हो जाए, अल्लाह का डर और नहीं है। बस ये आपने कह दिया। वो कालपी वालों का भी यही मिजाज है कि वो हाथ चूमने के लिए उनके खड़े हो गए थे उर्स में। अरे जब तुम कह रहे हो कि वो खानकाएं हमारा हाथ चूमती हैं, तो तुम्हें तो बाद में आना चाहिए ना, सबके बाद में आना चाहिए था जो तुम्हारा हाथ चूमती है। हजरत जितने भी मसौली वाले थे सब पहले आके बैठ गए, बाद में सरदार साहब आए, बाद में वहाँ पर उर्स में जामियातुल रज़ा में सरदार साहब बाद में आए। हमें मालूम है कि सरदार साहब पहले आ ही नहीं सकते, क्योंकि सरदार साहब पहले आएंगे तो फिर ये बाद में आएंगे, तो इनके लिए उठना पड़ेगा। सरदार साहब को सरदार बन के आए थे सबका, जितने भी मसौली के पीर ये भी खड़े हो गए, वो कालपी के भी वो भी खड़े हो गए। हमें सब मालूम है कि वो इसी तरह से आते हैं कि पहले इन पीरों को आगे भेज दो, जाके पहले बैठ जाए, बाद में मैं आऊंगा। इन पीरों की हिम्मत नहीं है कि बाद में आ जाए, उनके बाद में आने की हिम्मत नहीं इन पीरों की, जितने भी कालपी के ये मसौली के है ना। जो अरे वो जो अभी हुआ ना जामियातुल रज़ा में उर्स, वो आए थे सरदार साहब, बाद में आए थे सबके। अच्छा, सरदार के बाद फिर कोई नहीं आ सकता है, मतलब ये कि वो जो सबके बाद में आएगा वो सबसे बड़ा पीर हो जाता है इनके। सबसे बाद में कौन आया? वही आए थे काजी साहब जो बने हुए ना इंडिया के काजी साहब बने, जो अदर मियां के लड़के हैं। अच्छा, हाँ वो आए थे सबके बाद में, उनके सामने सब खड़े हो गए, जितने भी कालपी के थे मसौली के थे, इनके सामने हाथ बांधे बड़े अदब से। और कालपी वाले कहते हैं कि हमारा खानका वाले हमारा हाथ चूमेंगे, हाथ चूमते हैं कम, यानी काल मारेरा के, बिलग्राम के, और क्या कहते हैं कछोचा के। यहाँ वो बता रहे थे अपनी बहुत शान बगा रहे थे वो। अरे भाई तुम अपने मियाँ मुंह मिट्ठू बन रहा हो, अपनी खुद तारीफें कर रहा हो, दूसरे तारीफ करे तो अच्छा है, अपनी तारीफें तुम खुद कर रहे हो। क्या ख्याल है साहब? बिल्कुल ठीक। वो आपने जो कहा वो बात सही, दुकानें बंद हो जाएंगी, अपनी रोजी रोटी चमकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं आजकल के जमाने के।
बस 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 ये सब वो- माहौल अभी अभी पैदा हुआ है 20 साल से, पहले के लोगों में ये बात नहीं थी। जी। पहले के जो लोग थे ना, बिलग्राम हम गए, बिलग्राम में हमने तकरीर किया है, वो जो उनके खानदान में थे पुराने बुजुर्ग साहब, वो लोग ऐसी बातें नहीं करते थे, न वो इतने हालात के गुनगाते थे, न चर्चे करते थे। ये तो अभी अभी ये सब माहौल पैदा हुआ है। जी जी बस भाई पेट भर लो, दुनिया में कितने ही कमा लो, बैंक के भर लो, लेकिन कब्र में तो हिसाब देना पड़ेगा, और कयामत में अलग देना पड़ेगा। 2 बार कब्र का हिसाब अलग है, कयामत का हिसाब अलग है। छोटा वाले भी बड़े लालची हो गए, अलावा मुजफ्फर हुसैन हजरत मौलाना मुजफ्फर हुसैन कच्छोजी रहमतुल्लाह अलैह के, जी। वो तो मुजाहिद दौरा थे, उन जैसा कोई अब है भी नहीं। नहीं, एक उनके हजरत समनानी मियाँ जो है, ये नूरानी मियाँ के छोटे भाई, जी ये शेर दिल आदमी है, मर्द मुजाहिद है, रोशन जमीर है। ये इन्होंने एक बार कह दिया था, हमारे ऊपर थोपो मत, ये 5वें मसलक का नारा। तो उनकी फिर बुराइयां करने लग गए थे बरेलवी, देखो उसने ऐसा बोल दिया था। वो बहुत बड़े मर्द मुजाहिद, रोशन जमीर, और बहुत यानी हक बात कहने वाले आदमी है। समनानी में जो सबसे छोटे भाई हैं, लड़के हाशिमिया के सबसे छोटे वाले। लेकिन हो सकता है बाप ने समझा दिया, बेटा ऐसा मत करो, नहीं तो यार ये सब तुम्हारी वजह से नूरानी मियाँ का भी प्रोग्राम बंद हो जाएगा और इनका भी बंद हो जाएगा। ऐसा बोलोगे तो यार अपने प्रोग्राम नहीं मिलेंगे, इसलिए अब मत बोलो ज्यादा हक बात। मतलब कुछ भी हो सकता है, समझा दिया होगा। जो शेखुल इस्लाम कहलवाते हैं अपने आप को, वो कौन है इनके? अब देखो, वो तो बहुत सारे आलिम है साहब, एक दो नहीं है, 4 शेखुल इस्लाम है। एक शेखुल इस्लाम हजरत हुसैन अहमद मदनी है, एक शेखुल इस्लाम अल्लामा ताहिर काजी है, एक शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है, एक शेखुल इस्लाम हजरत मुफ्ती मोहम्मद मदनी मियाँ साहब है। तो 4 शेखुल इस्लाम है, 2 देवबंद वालों में है, 2 बरेली वालों में है। एक मीडियम है, न देवबंदी है न बरेलवी है, वो मीडियम में आते हैं अल्लामा ताहिर काजी साहब, वो न देवबंदी है न बरेलवी न अहले। वो कट्टर सुन्नी आदमी है, पूरी दुनिया में छा रहे हैं अल्लामा ताहिर काजी साहब की तकरीर सुना करो आप तो बस। क्या बात है, क्या बात है अल्लामा ताहिर काजी 120 मुल्कों में नेटवर्क है, 1000 किताबें लिख चुके हैं कमबेश। और दुनिया में ऐसा आलिम अभी कौन है, मुश्किल से ही मिलेंगे। वो मुजद्दिद है आज का। अरे साहब, जामे अजहर में इनकी किताब मुझे बताया कोई ने पढ़ाई जाती है। जामे अजहर मिस्र में, अमेरिका में एक बताया से पढ़ाई जाती है, अमेरिका तक में पढ़ाई जाती है। वो अकेले ही पूरी दुनिया में छा रहे हैं। दावत इस्लामी तो लाखों लोगों के दम पे छाई है, वो तो अकेले ही। ये है बहुत बड़ी बात, अकेले। उनकी जो मेहनतें हैं, बहुत बड़ी मेहनतें हैं साहब, बहुत बड़ा काम है। और वो उम्मत को जोड़ के रखना चाहते हैं कि उम्मत के अंदर तोड़ पैदा ना हो, उम्मत में जोड़ पैदा हो। जो देवबंदी है देवबंदी रहो, बरेली बरेली रहो, एलएदी, लेकिन ये खुराफाते मत करो, नफरतें पैदा मत करो एक दूसरे की। ठीक है साहब, इंशाल्लाह फिर बात कर लेंगे। हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।